نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہتے ہیں اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، آپ جس پہ نظر ڈال دیں اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، تو آج میں کچھ واقعات اور روزہ مبارک بتاؤں گا حضرت صفی لالہ مستان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں سرکار سے بیعت ہوں۔ کہتے ہیں کہ کچھ نظر آتا نہیں تھا سوائے اندھیرے کے، آپ نے آ کر روشن جہاں کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ اگر جاننا ہے اور سیکھنا ہے تو اللہ والوں کی زندگی پہ نظر ڈالنا ضروری ہے۔ انسپریشن کین چینج یور ڈیسٹینیشن۔ ہم اگر ایسی شخصیت سے انسپائر ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی پوری اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جن کی گزری ہے، انہوں نے صحیح مطلب سیکھا اور سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کی جاتی ہے، تو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے روزہ مبارک۔ محبوب سبحانی ہے غور کی جو آپ نے آئینی آپ کو ٹکڑے بدل کے دیے یہ میرے پیر صفی لالہ مستان، جو ملا وہ یہ در سے ملا، جو سیکھا وہ یہیں سے سیکھا، اچھائی ساری یہاں سے آئی، کہ دنیا بہت حسین بنے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صفی لالہ مستان۔ یہ ہے روزہ مبارک حضرت صفی لالہ مستان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سینکڑوں کرامتیں آپ کی جاری ہے، الحمدللہ۔ اس سال دودھ رکھا جاتا ہے تہہ خانے میں، تو اسی دودھ کی چائے اگلے سال عرس میں بنتی ہے اور پبلک میں تقسیم کی جاتی ہے، الحمدللہ۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ حیاتی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تارا گڑھ بابا کی درگاہ ہے یہ، اور یہ بازو میں جو کھولی ہے، جنگل بیابان ہوا کرتا تھا یہ۔ ابھی تو ماشاءاللہ سرکار کے پردہ کرنے کے بعد اللہ نے کرامت ہی کرامت کی ہے کہ یہ عالی شان محل بن چکا ہے، اور خاصیت یہ ہے کہ کسی سے ایک پیسہ بھی اگھرایا نہیں جاتا یہاں پہ، کسی سے نہیں، یعنی کسی سے نہیں۔ یہ عالی شان مسجد ابھی ابھی بنی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ درگاہ شریف کے بازو میں قبرستان بھی ڈیولپ کیا ہے، اور یہ مسجد کچھ ہی وقت میں قریب 6 مہینے کے اندر بنا دی ہے۔ اللہ کی شان نرالی ہے کہ اللہ والوں کی عزت رکھتا ہے اللہ پاک۔ آپ کی زبان کی لاج رکھیے کہ کسی سے کچھ لیے بغیر، اگرانہ کیے بغیر، اللہ تعالیٰ نے غیب سے جس کے دلوں میں ڈالا اس نے اس میں شرکت کی، اور یہ عالی شان مسجد بھی ہے درگاہ کے ساتھ ساتھ سرکار کی، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ یہ اقبال بھائی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بابا کی حیاتی سے یہاں موجود ہے اور وہ خدمت میں ہے۔ میں نے کہا لاکھوں لوگوں کی زندگی یہاں سے بدل گئی، ان میں سے ایک اقبال بھائی بھی ہے۔ بہت اچھے میکینک پینٹر تھے یہ، اور ویسے گھومتے تھے، بولتے کہ ان کی کپڑوں کی کریز نہیں ہٹتی تھی، ویسے یہ گھوما کرتے تھے۔ ان کی زندگی کیسے بدلی یہ خود بتائیں گے، ان کی بابا کی حیاتی کا منظر۔ بتاؤ اقبال بھائی۔ 2001 میں پردہ کرے بابا، اس کے بعد میں میرے کو کیا تھا کہ ہمارے بعد میں چھوڑ دینا سب، تو سب میں نے چھوڑ دیا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں یہاں رہوں گا، اور اس کے بعد میں یہاں جنگل میں منگل کرا ہوں۔ بولے جنگل میں منگل کرا، 25 سال سے لنگر چلتا ہے، کوئی اگرانا نہیں ہے، پبلک سب آتی جاتی ہے ہر جاتی کی، اور ان کے یہاں آ کے منت ان کی پوری ہوتی ہے، ہر انسان کی، ہر جاتی کا انسان آتا ہے، جو بھی مانتا ہوتی ہے ان کی، کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے آتے ہیں، اور
सभी बापू करते और जुमेरात भी चलती है और रोज़ भी लंगर चलता है और सभी बापू की धूम चलती है। बाबा ने बोला कि हमारे नाम से उगड़ाना नहीं करने का, यानी कभी भी किसी से पैसा मांगा नहीं गया सभी यहाँ। बापू ने किया हमारे नाम से उगड़ाना नहीं करने का, हमारा काम हम खुद ही कर लेंगे। माशाल्लाह, बोले जिंदा आदमी नहीं कर पाते हैं, अल्लाह की वैसी बर्दाश्त के शान है बाद हम करेंगे हमारा कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को जिनको पसंद करता है उनकी शान वो बरकरार रखता है ता क़यामत तक। तो आपने वो सब करके बताया, अल्लाह पाक ने जो आपके किया था, लिए रोड किया था, निकला जो सब आपने कुछ बताया जो आपने बता दिया था वो सब कुछ हो हयाती गया। दौर में सब। हमारी रिक्शा लेकर आए तो यहाँ फंसा जाती थी, तो धक्के मारने बुला देने जब झूले टाइम में। बाबा की ऐसे तो हजारों करामतें हैं। इकबाल भाई, तुम्हारी हाँ हाँ बाबा, नज़र में जो याद रह गया हो, जैसे हयाती में हयाती में ये रोड अलबुर्ज वाला है, वो आपने बताया कि यहाँ रोड निकलेगा। आज उसको हुआ करीब 35 साल, 25 साल पर्दे को, वो 10 साल पहले, 35 साल पहले फरमाया था आपने कि यहाँ पर ये रोड निकलेगा। और यहाँ पर एक बिल्डिंग नहीं थी 4 किलोमीटर तक में, और आपने उस टाइम में फरमाया था कि यहाँ बिल्डिंग आजू बाजू में टोटल 25 साल पहले बताया था आपने, 25 साल के भी पहले। और 2002 में राइड्स होने वाले थे वो भी आपने 2001 में बता दिया था। और हुक्म आया था वो भी आपने बताया था, हुक्म भी पहले बता दिया था, 6 महीने पहले हुक्म बताते थे आपके हुक्म आएगा। मरबोई लग गई, मरबोई लग गई, ऐसा चिल्लाते थे कि बहुत मुसलमान मर गया, बहुत मुसलमान मर गया। कोई समझ नहीं पा रहा था वो बात को, मैं भी छोटा था बहुत। और उसके बाद 2002 के राइड्स हुए और हम सब जानते हैं कि मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ हुई उसमें, और बहुत कत्लेआम हुआ, बहुत नुकसान हुआ। तो वो सारी चीज़ें अल्लाह के वली की शान निराली होती है कि बस क्या कहें। जैसे मेरी ज़िंदगी, इनकी ज़िंदगी, कई लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। अभी शुरुआत है इंशाअल्लाह ताला, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है, तो एक दिन नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ नहीं। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है कि जिसके आने के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। तो मेरा बचपन यहीं गुजरा है और एक बहुत ही निचले तबके से यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि बहुत कुछ अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। वो जो मिला वो सब इसी दर से मिला। हम जो सोचते हैं और हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी हमारी गफलत में चली जाती है और हमको पता ही नहीं चलता है। तो ये मेरे पीरो मुर्शिद जिनका मज़ार अभी हमने देखा, बताया, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। आप जैसे इसाक भाई है ये, मैं जब छोटा बच्चा था यहाँ आता था, करीबन 6-7 साल का था। 7 साल आपकी सवा तोला सवा मासा 3 घुट 24 घंटे का पानी था। सवा तोला सवा मासा 3 घुट पानी 24 कलाक के अंदर आपकी ये गिजा थी अल्लाह की तरफ से। आपको हुक्म होता था, वही काम करते थे आप। और 3 लाख पीर, 3 लाख वली, 3 लाख फकीर के शहंशाह है। और यहाँ पे जो आता है उसकी मुराद पूरी होती है। और आप गरीब नवाज के ताल्लुका से है और आपका नाम है साने बिन बदूल शाह ख्वाजा मोहम्मद शफी सरकती से मतलब। मेरे पास खुद आगे 180 मकान है और 40 दुकानें हैं बाबा की दुआ की। 91 में हम लोग आए थे यहाँ रहने। हमारा अंदर का एक सोसाइटी में घर था छोटा सा, उसको छोड़ के नए बंगलों में शिफ्ट हुए थे। तो मेरी अम्मी को एक ख्वाब आया, ख्वाब में आपका दीदार हुआ और मेरी अम्मी यहाँ से चलते चलते निकल रहे थे। तो बाबा ऊपर खड़े हुए थे, ये तारागढ़ कहलाता था, थोड़ा सा ऊपर था। वो रास्ता जो पीछे जाता है वो नीचे था। तो बाबा ने ऊपर से देखा, मेरी अम्मी की नज़र पड़ी तो मेरी अम्मी को ऐसा लगा कि कोई बड़े बड़े बाल थे बाबा के। तो बोले कोई सरदार जी, ऐसा सोचा मेरी अम्मी ने, मन उनके दिल में सोचा। और उनसे ना रहा गया तो दूसरी बार, तीसरी बार, जैसे 3 मरतबा यहाँ से गंज मसा सरकार का रोज़ा है थोड़ा सा आगे, तो वहाँ मेरे अम्मी गए। दोबारा उनसे नहीं रहा गया तो बाबा से मिलने आए। और जैसे बाबा ने उसी वक्त पहले बोल दिया कि काफ़ी बाजी टाइम बोले हमको मुसलमान की औरतें पंजाबी समझती हैं। तो आप दिलों के हाल जानते थे और अल्लाह का खौफ क्या होता है वो यहीं से सीखा कि एक अल्लाह का इतना इबादतगार नेक बंदा जो
24 घंटे अल्लाह अल्लाह करता है, वो भी अल्लाह से इतना खौफज़दा रहता है कि बोले मैं ऐसी चीज़ है जो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मैं पे अल्लाह की तलवार है। मैं का मारा तो बेचारा होता है, उसको क्या मारना, बेचारा खुद मरा हुआ होता है। आओ शहनशाह का रोज़ा देखें। यह है हज़रत गंज अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह। आप करीब 650-700 साल पुराना आपका रोज़ा है। खुशकिस्मती हमारी कि हम ऐसे शहर में, ऐसे इलाके में पैदा हुए कि जहाँ पे इतने बड़े बड़े अल्लाह के वली मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम सरकार, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये 16 खम्बे हैं सरकार के रोज़े के बिल्कुल सामने, जहाँ मस्तान बाबा बैठ के इबादत किया करते थे अपनी हयाती में। तो अल्लाह वालों की शान निराली होती है, अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद होती है वहाँ, तो अल्लाह से मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। बगैर बोलते ना कि सोर्सेस के कोई कहीं नहीं पहुँच सकता। ये वो तालाब है, अभी तो सूख चुका है, उस वक्त पे पानी भरा रहता था। अब यहाँ से ये 16 खम्बे हैं, सरकार यहाँ बैठ के इबादत किया करते थे अपनी हयाती में। सोचो कि हमको एक चीज़ की कमी हो जाती है तो हमारी ज़िंदगी जैसे उथल पुथल हो जाती है। हमसे एक चीज़ की कमी सहन नहीं होती, और क्या सब्र किया होगा आपने 16 साल यहाँ बैठ के इबादत की अल्लाह को राज़ी करने के लिए। एक प्लेट हुआ करती थी जिसमें आप वो खाना एक शख्स दे जाया करता था, तो वही खाना कुत्ते को खिलाकर प्लेट उसी तालाब में धो के वापस अपनी जगह पे बैठ जाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की शान में मैंने एक कलाम लिखा है। मेरी ज़िंदगी पे जो आपका एहसान रहा है, डेडिकेट करने की कोशिश की है मैंने। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रिलीज़ होगा वो। शाहिद मालिया बॉलीवुड के बेहतरीन सिंगर हैं, उन्होंने वो गाया है। म्यूज़िक दिया है शारिक, एक नया लड़का है, उसने म्यूज़िक दिया है। माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन म्यूज़िक है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल शाहिद मालिया। बहुत जल्द रिलीज़ होगा, देखिए उसकी कुछ झलक। बदरुन्निसा के लाल तेरी बात है कमाल, ये शान है शफी तेरी, ये शान है शफी तेरी के रख ली लाज तूने मेरी। बदरुन्निसा के लाल तेरी बात है कमाल, बदरुन्निसा। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है। मैंने क्या लिखा है सरकार ने लिखवा दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपकी शान इसी तरह बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन।